ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭੇਦ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਰਪਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਬਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁੰਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨਿਭਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਿਣ ਭੰਗਰ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ,
नाम का रस जो ये विचार चल रही सी मेरे मन च आ रहा सी, मैं किहड़ी उदाहरण देवां कि इश्क की, परमात्मा दे नाल आशिक की, प्रेमी की वो रस आनंद की है। मेरे सामने एक दो उदाहरण आईयां। तुसी गर्मी दे विच किते आउंदे जे, बड़ी प्यास लगी है, जुबान जिहड़ी तालू ना लगदी पई है, पानी का अपना कभी कोई स्वाद नहीं हुंदा। तुसी देखो पानी का कोई टेस्ट नहीं है, वो जिहो जिहा फ्लेवर पा दोगे उन्हें उहो जिहा स्वाद देना है। पर जिस वेले मनुख नूं प्यास लगदी है, वो पानी दे 2 घुट अंदर भरदा है तो कहंदा स्वाद आ गया। वो 2 घुट भरन दे नाल जिहड़ी प्यास बुझण तो बाद तुहानूं आनंद आउंदा है ना, वो एक पानी का रस है, वो पानी का आनंद है। बहुत थोड़ा समा हुंदा है। इस तरीके दे नाल कोई स्वादिष्ट चंगा भोजन तुसी छकदे जे, उहदा तुहानूं स्वाद आउंदा है, उहनूं तुसी खांदे जे, होर स्वाद आउंदा, होर खांदे जे, होर स्वाद आउंदा, होर खांदे जे। बंदा रज जांदा, 2 प्रशादे वध खा जांदा, कहंदा भोजन बड़ा स्वाद सी, अज वध खादा गया। जे भोजन स्वाद होवे ते छड्डण नूं दिल नहीं करदा, ते गुरमुखो जे पानी प्यास लगी होवे उहनूं छड्डण नूं चित नहीं करदा। ਜਿਹਦੇ अंदर नाम की भुख लग जाए उन्होंने भी छड्डण नूं चित नहीं करता। माधो जल की प्यास ना जाए। जिन्हों नाम की प्यास अंदर लगी ना, वो फिर अंदर की प्यास, नाम सिमरन की प्यास मिटदी नहीं। फर्क इन्ना कि दुनियावी पदार्थों का रस, दुनियावी पदार्थों का आनंद, स्वाद छिण भंगर मात्र है। प्रशादा गले तो थले उतरिया, स्वाद खत्म हो गया। पानी गले तो थले उतरिया, स्वाद खत्म हो गया। पर परमात्मा का नाम ज्यों गले तो थले उतरदा, इहदा त्यों त्यों स्वाद हौली हौली तां चढ़ना शुरू हुंदा है। ज्यों ज्यों बाणी अंदर समाउंदी है, इहदा त्यों त्यों सरूर मनुख नूं आउण जिहड़ा लगदा है। सो इत्थे मैं तां बेनती कीती कि ये मता मन च भुलेखा रखिए सानूं स्वाद नहीं आउंदा। देखो कुदरत का एक नियम है, जिहड़ा दुनियावी स्वाद है साडी केवल तो केवल जुबान का उपरला हिस्सा ही मानदा है। थल्लड़े हिस्से भी कोई चीज़ रखो वो स्वाद नहीं मान सकती। पर बाणी का स्वाद जदों हिरदे च बाणी लग जाती है ना, तो अमृत बाणी का बड़ा प्यारा बचन है। कह लगे इत तन लग गया बाणियाँ, कह लगे जो इस तन नूं बाणी लगन लग पे। एक तो पढ़ते हैं आपां, एक लगनी हुंदी है। जिवें कहंदे दवाई खा ली जां खुराक खा ली, खुराक लग जानी। इस च फर्क है। इत तन लग गया बाणियाँ, सुख होवै सेव कमाणियाँ, सब दुनिया आवन जाणियाँ, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसन पाईए। जिस दिन बाणी अंदर नूं लग गई, याद रखी परमात्मा की दरगाह दे विच तेरी थां बन जाएगी। सो सतगुरु अज पौड़ी दे विच बख्शिश करते हैं, कह लगे जे तू सच्चा प्रेमी है तो उस परमात्मा नूं ध्या, जिस नूं ध्याउण दे नाल सदीवी सुख की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु बख्शिश करते हैं पौड़ी दे अंदर पौड़ी। सतगुरु कह लगे जित सेविया सुख पाईए। पहली बेनती इहदा पाठ सेविया नहीं करना, जिवें सुनिया हुंदा इस तरीके दे नाल सेविया, जिस नूं सेवन दे नाल जिहदी सिमरन बंदगी करन दे नाल जित सेविया सुख पाईए, सो साहिब सदा संभालीए। कहते उस साहिब नूं, उस मालक अकाल पुरख वाहिगुरू उहदी याद नूं हमेशा हिरदे दे विच साम के रखो। मैं एक दो बेनतियां करनियां। पहली बेनती ये वो पौड़ी है जी, जिस पौड़ी नूं सुन के भाई लहणा जी गुरु अंगद देव महाराज जी बनते हैं। भाई जोध दे कोलों जिस वेले भाई लहणा जी ये पावन अमृत बाणी सुनते हैं ना, वो इहो पौड़ी सुनी जाती है कि जित सेविया सुख पाईया, सो साहिब सदा संभालीए। ये सुन के ही मन दे विच आया सी मना, वो किहो जिहा मालक होवेगा, किहो जिहा दाता होवेगा जिहदा सिमरन करन दे नाल ही सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। पहली बेनती ये। दूसरी बेनती करां, सतगुरु इत्थे समझा रहे ने उस मालक नूं सेवी जिन्हों सेवन दे नाल तैनूं सुख प्राप्त हुंदा है। इत्थे मन च शंका पैदा होवेगा उस सुख किहड़ा है, क्योंकि असी जिहड़ा सुख है वो दुनियावी बनाए हुए ने। मैं कल भी जिवें उदाहरण दित्ती सी, जिहड़ी चीज़ सानूं चंगी लगदी है वो साडे वास्ते सुख है, जिहड़ी सानूं मंदी लगदी वो साडे वास्ते दुख है। साडी ते परिभाषा इन्नी कहना, पर याद रखियो अमृत बाणी चो मैं एक दो उदाहरण ते एक उदाहरण इतिहास की दे देना। अमृत बाणी का प्यारा बड़ा प्यारा फैसला है। कहन लगे जो सुख को चाहे सदा, जे तू चाहुंदा है कि मैनूं सदीवी सुख प्राप्त होवे। एक सुख छिण मात्र दा कुछ समय वास्ता है। साडे कोल चंद पैसे आए, ये सुख है, पैसा खत्म हो गया, सुख खत्म हो जाएगा। साडे कोल परिवार है, सुख है, पर जो परिवार वाले बजुर्ग नूं बाहर कढ़ देंदे ने घरों, वो सुख खत्म हो गया। हरेक चीज़ का सुख है, वो सुख समा पा के तब्दील हो जाता है। चलो आप मौसम के हिसाब नाल गल कर लईए, हुण गर्मी पै रही है, ठंडी हवा चले तो तन नूं सुख महसूस हुंदा जे। इहो ठंडी हवा सियाल च चले तो दुख महसूस हुंदा। दुनियावी सुख दुख च तब्दील होवेगा। इनू अमृत बाणी के फैसले ना मैं थोड़ा जिहा होर क्लीयर कर देवां। सतगुरु कहते तू जिहड़ा दुनियावी सुख मनदा है ना, वो सदीवी नहीं। मनुख की अज एक सोच है
कोई गरीब होवे ना आर्थिक तौर पर उन्होंने कहा जाए कि भलिया नाम जप, वो कहता मैं थोड़ा जिहा काम कर ला, घर पर बनवा ला, घर बना के फिर नाम जपिया करना है। घर बन जाता, कहता बच्चे स्टैंड कर ला, बच्चे स्टैंड करके नाम जपांगा। सारी उम्र लंघ जाती, बंदा सिविया तक पहुँच जाता, नाम जपण वाले पासे नहीं तुरदा। एक गल याद रखियो, बाहरी धन दौलत का रूहानीयत के सिमरन के नाल कोई लेना देना नहीं। मैं तो कई वेखे जी जिहड़े जो नाम जप जप के परमात्मा कृपा करता, ज़्यादा पैसे आउंदे, फिर समा ही नहीं लगता, गुरु घर आउण दा ही नहीं समा लगता। सो इस करके ये कदी नहीं मन च सोचना कि आह काम हो जाएगा किते नाम जपांगे। परमात्मा का नाम एक पासे है, रूहानीयत का सुख जिहड़ा एक पासे है, दुनियावी चीज़ां एक पासे ने। परमात्मा के नाम दे विचों जिहड़ा सुख मिलना है ना, उहदा दुनियावी चीज़ां जिहड़ियां कदी मुकाबला नहीं कर सकदियां। जे तुसीं प्रशादा कदी नहीं त्यागदे, घर च सुख आउंदा है, विआह शादी है तां भी प्रशादा छकिया जांदा है, घर दे विच किते मौत हो जाए प्रशादा तां भी छकिया जांदा। परिवार वाले फड़ के कहणगे चलो खा लो, जो होना सी हो गया। जे सुख वेले दुख वेले तू अन्न पकवान नहीं त्यागदा, याद रखी तू सिमरन नूं किहड़ी गल्लों छड्डदा है, बंदगी नूं किहड़ी गल्लों छड्डदा है। उत्थे सतगुरां दा बड़ा प्यारा बचन है, कहण लगे सुख नाही बहुते तन खाटे। कई बारी मन च एक तुसी कोई अमीर मनुख वेखो ना, मन च आवेगा कि मना ये बड़ियां महंगियां गड्डियां ते घुमदा है, इहदी जिंदगी बड़ी VIP है, ये बड़ा सौखा होवेगा। सतगुरु कहंदे नहीं, पैसे दे नाल सुख नहीं कदी आउंदा। लॉकडाउन दे विच कई तुसी जिहड़े धनाड़ लोग ने वो सुसाइड करते देखे होणगे, गरीब ने कदी सुसाइड कीता जी? गरीब गरीबी करके कर्जे वाला तो भावें सुसाइड कर जाए। बहुते लोग आ पिछे जे एक होर जिहदे घरों 12 इट्टा 9 के 12 इट्टा फड़ियां गईयां, वो सुसाइड कर गया। इहो जे पैसे नूं की करोगे? बच्चियां वास्ते कमाउने आ ना, जिहदे वास्ते कमाए वो पोती नहीं रहा, पैसे नूं की कर लोगे? की कर लोगे इहो जे सुख नूं? मनुख के मन च ये गल हुंदी है कि पैसे दे नाल सुख है, सुख पैसे नाल कदी नहीं हुंदा। सुख नाही बहुते तन खाटे। उस तो बाद मनुख समझदा है चल जे पैसे च सुख नहीं मिलिया, फिर जो पैसे आउंदे मन च आउंदा किते घूम फिर आउने आ, कोई फिल्म वेख ली है, किसी क्लब दे विच चल जाइए, नच भुड़काई है, किते उत्थों सुख मिल जाएगा। सतगुरु कहंदे उत्थों भी सुख नहीं। सुख नाही पेखे नृत नाटे। नृत का अर्थ नाच, नाटे का अर्थ नाटक। तुसीं नाच गाना वेख लिया, नाटक वेख आए, उर चों भी सुख नहीं निकलिया। उस तो बाद मनुख के मन च ये भी गल कदी आउंदी है कि मैं संपत्ति थोड़ी थोड़ी इकट्ठी कर लवां, धन दौलत इकट्ठी कर ला। पैसा इकट्ठा कीता, तसल्ली नहीं हुई, हुण इन्ने प्लाट कट्टने शुरू कर दिते, मैं 2-4 प्लाट बना ला, उर चों सुख मिल जाएगा, प्रॉपर्टी है कल नूं काम आवेगी। सतगुरुआं ने प्लाटां तो भी गाह लंघे जी। सतगुरु कह लगे तू प्लाट की गल छड्ड, तू कलोनी कट ला, कलोनी की गल छड्ड, तू देश विदेशों नूं जित के आ जा, उर चों सुख भी नहीं निकलना। सुख नाही बहुत देश कमाए, सारे देशों नूं जित के क्यों ना आ जा, उर चों भी सुख नहीं निकलना। फिर दाता जी सुख कहने लगे सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। जो तू परमात्मा का नाम जपेगा उहदे विचों ही सदैवी सुख निकलना है, दुनियावी चीज़ों के विचों किते सुख नहीं निकलता। जिन्हों गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते सगल सृष्टि को राजा दुखिया। उत्थे ये नहीं क्या हिंदुस्तान का, ये नहीं क्या पाकिस्तान का, ये नहीं क्या किते कनेडा अमेरिका का, कहते नहीं। जिहड़ा मनुख भी रब नूं भुल्लिया बैठा वो किते भी दुनिया 'च बैठा है गुरमुख, वो दुखी है। ये सानू इउं प्रतीत हुंदा है कि फलाना बंदा सौखा होवेगा। एक पेंडू जी उदाहरण दे देना, साडे कहिंदे पिंडां 'च कहिंदे हुंदे, कहंदे दूजे दी खुरली 'च पट्ठे ज़्यादा लगदे ने। किते डंगरां नूं पट्ठे पाए हो ना, वंड वुंड पाया होवे, वो अपने पट्ठे छड्ड के ते नाल दी खुरली 'च मूँह मारदे ने। डंगरां नूं आदत हुंदी है, ऐ लगदा भी उधर ज़्यादा स्वाद ने, ज़्यादा वंड है। सानू अपने घर दे सुख नहीं लगदे, गवांढी वाल ज़्यादा सुख लगदे ने। इहदे कोल वड्डी गड्डी है, ज़्यादा इहदे 'च बड़े सुख होणगे। इहदे कोल वड्डी कोठी है, इहदे 'च ज़्यादा सुख होणगे। मैं बेनती करां, गड्डी दा काम आउणा जाना ही है। हाँ महंगी गड्डी दे नाल उहदे 'च कुछ सहूलतां ज़्यादा ने, स्पीड ज़्यादा है, जाना उन्ने भी है। कोठी का काम भी उन्ना की है। तुसीं करोड़ां दी कोठी खरीद लो, नींद करोड़ां नाल नहीं जे खरीद सकते, नींद कर्मां दे नाल ही आउंदी है। सतगुरु कहण लगे सगल सृष्टि को राजा दुखिया। फिर सुखी किवें? हर का नाम जपत होए सुखिया। परमात्मा का नाम जप तो इनू सदैवी सुख आवेगा। मैं विचार वाला वां जितों पावन विचार शुरू कर लगा सा। सतगुरु कहण लगे जे सदैवी सुख चाहना, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कह लगे तू परमात्मा की शरण लै, तू अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों के नाल जुड़, जिहदे विचों सदैवी सुख मिलना है। याद रखियो दुनियावी सुख समा पा के खत्म हो जाता है, रूहानीयत का सिमरन का सुख कदी खत्म नहीं जे हुंदा। पर इत्थे एक गल नाल जरूर अज चेते रखियो, क्योंकि सतगुरु कह रहे हैं कि जित सेव्या सुख पाई है, उस परमात्मा नूं सिमर, जिस नूं सिमरन दे नाल सुख प्राप्त हुंदा है। तो जदों तुसीं सिੱਖੀ नूं देखोगे ना, इतिहास पढ़ोगे, ये फिजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा दुख पाए गए ने।
पर बाणी इन्हां दुखां नूं नहीं मंनदी। एक पता पढ़ लैंदे आपां अरदास दा, उहदे विच जे वेखो सारे फिजिकल दुख ने, बाहरी मनुख आखेगा इन्हां चों ते दुख निकल रहे ने, सुख कित्थे ने? जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते। ये तीसरा पता है, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई। मैनूं दसो इहदे च किहड़ा सुख है कि बंद बंद कटाउणे सौखे ने, चरखड़ियां ते चढ़ना सौखा है, खोपर लवाउणा सौखा है, परिवारां दे परिवार गलां जिहड़े ने उपर कुर्बान करने सौखे ने, बच्चियां दे गलां च हार पवाउणे सौखे ने, गलां च टैर पवाउणे सौखे ने। किहड़ा काम सौखा है? ये सौखा नहीं सी ये, पर वो सुख सी जिहड़ा रूहानीयत दे नाल जुड़ के दुनियावी इन्ना क सुख निक्का जिहा लगदा सी कि बच्चियां दे हार गलां च पै गए, पर उन्हां ने भी दुख ना अंदर नूं दिता, क्योंकि अंदर से देवी सुख टिक चुका होया सी। उन्होंने दुनियावी तौर पर टॉर्चर करने का यत्न किया, दुख देने का यत्न किया। मैं पिछले दिनी उदाहरण दी सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह दे विच उन्हां दे 2.5 साल के पुत्र का तड़फदा होया कढ़ के दिल पाया सी। किहड़ा प्यो जर सकता है जी? पर जरिया किहदे सिर ते जरिया? उस सिमरन दे, क्योंकि सदीवी सुख आण के अंदर टिक चुका सी, दुनियावी सुख उहदे सामने कूड़ लगदे सन। आपां कल भी साखी सांझी कीती सी। सो इस करके सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ सुख निकलते हैं ना, वो रूहानीयत के सुख ने, वो कदी खत्म नहीं होंगे। वो तो जलाद नूं भी कह देंगे ने कि बंद मेरा इत्थों बनता है, तू गुट क्यों वड्डन लगता है, इत्थों बंद कट। वो तो जलाद नूं भी कह देंगे ने कि तेरे को केस कतल ही होने, जां खोपरी लिया, जे खोपर ला सकता तो ला ला। 22 दिन भाई तारू सिंह जी बिना खोपर तो रहे ने। वो सुख जिहड़ा सी रूहानीयत दा सी। जिस वेले भाई तारू सिंह दा पिछली वारी शहीदी दिहाड़ा मनाया सी, मैं एक गल कही सी, याद रखियो, कुदरत का एक निजे मैं तुहानूं सट लग जे जिहड़ी बर्दाश्त की हद तो बाहर है, कुदरत का निजे मैं मनुख बेहोश हो जाता है, पर भाई तारू सिंह 22 दिन बेहोश नहीं होए। वो सरीरक हालात दे विच जिउंदे बाणी पढ़दे, वो गुरु का लाल बैठा रहा, किहदे आसरे बैठा रहा? सो साहिब सदा संभालीए। उन्हें वो साहिब नूं संभालिया होया सी, जित सेविया सुख पाइए, अंदर सच्चा साहिब टिकिया होया सी। एक उदाहरण मैं इतिहास की देनी चाहुंदा, गुरु कलगीधर पातशाह जी का जीवन याद रखियो। कभी पटना साहिब की धरती ते रौनकां लगियां, आनंदपुर आए, आनंदपुर साहिब की धरती ते रौनकां लगियां, 4 लाल खेड़ दे अखां दे सामने जवान होए। कदी कीमती ते कीमती जिहड़े चंदोए, कीमती शमयाने, कीमती तो कीमती हाथी गुरु साहिब दे सीस ते चौर करदा रहा। ये सारे दुनियावी सुख सन। आखिर समा आया, सरसा दे कलैने पानी ने सारा कुछ बखेरू बखेरू करके रख दिता। चमकौर की कड़ी दे विच 18 साल का वड्डा पुत्र मेरे सतगुरां ने अपने हत्थी जंग के मैदान दे विच तोरिया। छोटे पुत्रां दा पता नहीं कित्थे है, माँ का पता नहीं कित्थे है। जिस वेले वड्डे पुत्र नूं तोरन लगे, भाई दया सिंह जी ने कहा सी, दाता जी तुहाडे छोटे पुत्रां दा पता नहीं, वड्डा पुत्र विआहण दे लैके इहनूं रख लो। सतगुरु कहन लगे, दया सिंह मेरे लिए सारे इक्को जिहे ने, वड्डा शहीद हो गया, सतगुरां ने उत्थे भी जकारा छड्डिया। ये वो सुख सी जिहड़ा पुत्रां नूं भी खत्म करा के दुख दे विच तब्दील ना होया। जिस वेले दूसरे पुत्र नूं तोरन लगे, कहन लगे, दाता जी कोई तो निशानी रख लो। सतगुरां ने छोटे साहिबजादे नूं भी तोरिया। जिस वेले बाबा जुझार सिंह नूं तोरिया ना, इक्को गल कही सी, कहन लगे, बेटा ख्वाहिश है तुम्हें बर्शी चलाते हुए देखे, अपनी आँख से तीर खाते हुए देखे। कह लगे, मेरा दिल करता है कि मैं तेनों बर्शी चलाउंदिया, तीर चलाउंदिया वेखा। जदों जालम, जदों दुश्मन तेरी हिक दे विच आण के वार करे, मूँह मेरे वाल एक बारी कर ली, मैं तेरा वो मुखड़ा वेखना चाहुंदा जिहड़े वेले तू शहादत दा जाम पीवें। तो मैं पिछले समय च गया सी, गुरमुख किहड़ा बाप, असी उम्मीदां लाउने, मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा मैं दिन वेखांगा, इंजीनियर बनेगा दिन वेखांगा, मेरा पुत अफसर बनेगा मैं दिन वेखांगा। पर धन जिगरा सी कलगीधर पातशाह दा, कहन लगे, पुत्र तू शहीद होवें ते मैं उहनूं रीझ ना बह के वेखांगा। उत्थे फिर बापू सोहण सिंह सीतल ने बड़ी सोहनी कविता कही, मैं वो कहनी चाहुंदा। कहन लगे, जिस वेले बाबा जुझार सिंह जी शहीदी पा गए ना, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने शुकराना किया, अकाल पुरख का शुकराना करके ये गल कही, दाता पराई अमानत क्यों रखी है, दिती हूँ सुख होए, ये तेरे सन, तेरे कोल पहुँच गए ने, मैं अपना जिहड़ा करजा सी वो उतार दिता। उत्थे शुकराना परमात्मा का किया। उत्थे बापू सोहण सिंह सीतल लिखते हैं, कह लगे, हस शहीदी पा गया जद लाल सुटेरा, अखां सामने हो गया वह बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा। कह लगे, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा,
तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हुक्म रजाई चलना, जो करे चंगेरा होवा तैथों सुरखरू, प्राण पाल उचेरा। अखीर ते कहंदे सन वाह वाह गोबिंद सिंह, वाह तेरा जेरा। कह लगे दाता ये तेरा ही जेरा है। जो ਜਿਹੜਾ ਸੀ आनंदपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ है। सतगुरु इत्थों निकलते हैं, माछीवाड़े के जंगलों च जाते हैं, उत्थे भी शुकराना है मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा। उत्थे भी ताना नहीं दिता, कोई मेणा नहीं दिता। इत्थे गुरु नानक साहब कह लगे जित सेविया सुख पाई है, वो सुख 10वें जामे दे विच प्रतख रूप दे विच विखा दिता कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे सहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना। कह लगे जारड़े दा सानू 70 चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना। कह लगे मालक तेरे तो बिना सानू जिहड़ा वो सुराहियां, वो प्याले, वो सूलां वांग लगदे ने। नगर दे विच रहना इउं जापदा है, कीमती गदेलियां ते रहना इउं जापदा असीं पट्ठी दे विच सड़दे हां। वो क्यों जापदा सी? क्योंकि अंदर सदीवी सुख टिकिया होया सी। मैं एक बेनती कह के अपनी विचार वाल आवां। गुरमुखो जदों किसी भी धर्म च तुसीं जाओ ना, उत्थे ये गल कही जाती है कि तैनूं दुनियावी सुख चाहिए ने, तो साडे कोल आ, तैनूं सुखां दी अरदास कर दांगे, तेरी दुआ कर दी जाएगी, तेरी ये कई शब्द वरते जाते हैं, हरेक धर्म वाले वरतते हैं। पर गुरु नानक साहब का घर ये सिद्धांत दे बिल्कुल वखरा चलता है। सतगुरु कहते जे तैनूं सुख चाहिए ने, जिथे मर्जी चले जा, सदीवी सुख चाहिए, अंदर का सुख चाहिए, तो मेरे को आ जा। गुरु साहब का बचन है, कह लगे जे मेरे घर दे विच आउणा ते अपने सिर का फुटबाल बना के आवी, इत्थे दुनियावी सुखां दी आसां ला के ना आवी। इत्थे कहा जाता है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली, गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना दीजै, कान ना कीजे। इत्थे दुनियावी सुखां दा लालच नहीं, इत्थे ते ये सुख मन्निया जाता, जे भुख देह तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई। कह लगे तू दुख दवें, सुख दवें, भुख दवें, कुछ भी दवें। मैं कल भी उदाहरण दी सी, केतियां दुख भूख सद मार, यह पे दात तेरी दातार, मैं तो हरेक दात नूं तेरा सत करके मन लवांगा। तू जिहड़ा भी दात दवें वो मेरे लिए सत है। क्यों? क्योंकि अंदर सदीवी सुख टिक जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहब कह लगे जित सेविया सुख पाई है। कहते जिस परमात्मा का सिमरन करन दे नाल दुनियावी सुख प्राप्त होंदा है। तो मैं पिछले ये जिहड़े श्लोक ने ना, ये आशिकी ते ने, मैं कल भी जिक्र किया सी, प्रेम ते ने। दुनियावी तौर पर जो मनुख किसी दे नाल जुड़दा है ना, प्रेम पैंदा है, उन्होंने दुनियावी चीज़ां ते बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने वो सुख दुख उन्होंने कोई महसूस नहीं हुंदे। उहदे वास्ते ना, मैं कल भी किसे ना कोई लाभ है ना कोई हानि, उन्होंने अपना प्यारा चाहिए। जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़ जाता है ना, उहदे वास्ते याद रखियो दुनियावी सुख छिण भंगर मत रह जाते हैं। उहदे तन दे उत्ते जिद्दां दे मर्जी भावें हाथियां दे सामने बन के क्यों ना सुट दिता जाए, वो तां भी नहीं जे राम राम जपना छड्डदा, भावें तत्तियां लोहां ते बिठा दिओ, वो तां भी तेरा की आ मीठा लगे, वो तां भी नहीं जे छड्डदा। ये परमात्मा के नाम का वो सुख है जिहड़ा सिमरन दे विचों निकलदा है। ये कशिश दे विचों पैदा होया नहीं, ये किसी तन नूं बॉडी नूं पैसों नूं वेख के पैदा होया सुख नहीं। अज बहुत धर्म ने जिहड़े धर्म तब्दील करन दे पिछे जे बड़ा रौला पिया सी, माया दित्ती जांदी है। इत्थे माया दे के धर्म नहीं मिलता, इत्थे सिर दे के धर्म मिलता जी। इत्थे आपां कुर्बान करके धर्म मिलता है। ये प्यार जिहड़ा ना, मैं कल भी कहा सी, प्यार च बहुत कुछ झलना पैंदा है, अपना आप कुर्बान करना पैंदा। सतगुरु कहते जे साडे घर दा तू प्रेम लैना है ना, तो वह याद रखी तन ते बड़े तरह के दुख आउणगे, बड़े तरह के सुख आउणगे। मैं एक बेनती कर देवां गुरमुखो, गल याद रखियो, जे दुख आ जाते जिन्हां लड़ नहीं असीं छड्डना। क्योंकि कल पढ़िया ना कि चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। ये साडी अवस्था नहीं, ये साडा जीवन नहीं। साडा तो इक्को ही है कि जो तुद भावै साई भली कर तू सदा सलामत निरंकार। जो तू मेरे वास्ते कर दे, मेरे वास्ते उही चीज़ चंगी है। दुनियावी तौर पर तुहाडे कोल सुख आउंदा है, तां भी परमात्मा का शुक्र करया करो। तो क्या करो, दाता तेरा धन्नवाद, मैं इस चीज़ के काबल नहीं सा, तू जिहड़ी दात दे दी। जे तुहाडे कोल कोई चीज़ खुस जाती है जे नहीं कोल आउंदी, उहदे अगे तां भी शुक्र करया करो कि दाता तेरा शुक्र है, मैं इहदे काबल नहीं सा, जां हो सकदा इहदे तो मैनूं दुख मिलदा, तू मैनूं बचा लिया, तेरा तां भी शुक्र है। सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, कह लगे जित सेविया सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। कहते उस परमात्मा नूं हमेशा अपने अंदर सांभ के रख, उहदी याद नूं अंदर टिका के रख, जिन्हों जपन दे नाल तेरे अंदर दा जिहड़ा सुख सदैवी रहना। जित कीता पाई है अपना, अपने दी गल आ गई, तू वो काम ना करी जिहदे नाल तैनूं अपने कर्मां दा फल भोगना पवे। दो चीज़ां ने, ये फिर वो गल रिपीट होवेगी। एक प्यारे दी गल है, एक प्रेमी दी गल है।
जे तो प्रेमी अपनी मर्जी ना करेगा तो याद रखियो वो प्यार नहीं जे भुगदा। जे प्यारे के मुताबिक चलोगे तो प्यार नहीं जे कदी टुटदा। सतगुरु कहते जे तू अपनी मर्जी की ना तो वेखी इहो जिहा कोई काम ना कर दवीं जिहदे नाल तैनूं उहदा नुकसान हो जे। सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, कह लगे जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। कहते माड़ा काम करना है क्यों जिहदे नाल तैनूं दुनियावी तौर पर जां अध्यात्मक तौर पर कोई नुकसान होवे। इनू गुरु अमरदास महाराज जी समझाते हैं कि ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। तू इहो जिहा कोई कर्म ना जिंदगी दे विच कर जिहदे नाल तैनूं कोई घाटा पवे, जिहदे नाल नुकसान होवे। अगली पंक्ति पढ़ देवां, मंदा मूल ना कीचई, कह लगे कदी किसी का मंदा ना सोचो। अमृत बाणी का यह फैसला गुरु नानक के घर का सिद्धांत है जी। सतगुरु कह लगे पर का बुरा ना राखो चीत, किसी का माड़ा ना चितो। कह लगे मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहालीए। लम्मी नदर मारी, झाती मारी कि जिहड़ा बीज मैं बीजन लगा है इहदा मैनूं फल की मिलेगा। मैं पिछले समय उदाहरण दी सी, तुसीं किक्कर का बीज बीजो ना, किक्कर के बीज नूं फड़ के हत्थ ते मलो, वो बड़ा मुलायम हुंदा है, उहदे च कंडे नहीं। पर सियाणा मनुख किक्कर के बीज नूं घर च नहीं जे कदी बीजदा, बेशक उन्होंने कंडे नहीं पर बीज कंडियां दा है। उन्होंने जिस वेले बीजोगे वेखण नूं मुलायम लगेगा, जिस वेले उगेगा सारे टब्बर दे पैर कंडियां दे नाल पाड़ के रख देगा। इहो जिहा सतगुरु कहते तू कर्म ना करी जिहदे नाल तैनूं गां कंडे वड्ढने पैण, जिहदे नाल तैनूं कंडे चुगने पैण। असीं अनेकां कर्म करदे हां पर सतगुरु कह लगे कर्म करन तो पहलां लंमी नज़र रखी, उन्होंने जरूर सोची जिहड़ा मैं अज काम कर लगा है इहदा फ्यूचर दे विच आउण वाले समय दे विच मैनूं इहदी आउटपुट की मिलनी है, इहदा मैनूं लाभ होवेगा जां हानि होवेगी। लंमी नज़र वो है तू एक कदम तुरे तो तैनूं अपनी मंजिल तक दा पता होवे, जिहड़े रस्ते ते मैं जान लगा ये मंजिल रस्ता जांदा किधर नूं है। साडे बच्चे साडा परिवार जां समाज जिहड़ा है वो पहलां इहो जिहे रस्तियां ते तुर पैंदा है, अखीर ते जीवन दे विच बाजी हार जांदे ने, हत्थ खुश नहीं लगदा, फिर कुछ मत्थे नूं हत्थ मार के सारी उम्र रो के कढ़दे ने। जिन्ना को जरिया नहीं जांदा उन्हां वास्ते फिर गल दे विच फिर रस्सियां पै जांदियां ने। सतगुरु कहंदे इहो जिहा कर्म कोई ना करी जिहदे नाल तैनूं कोई नुकसान होवे। कहण लगे पहली गल इहो जिहा कर्म नहीं करना जित कीता पाईए अपना, जिहदे नाल तैनूं अपना ही वापस आवे। मैं एक बेनती करा, तुसीं किसी दी अख दे विच एक हंझू लियाओ ना तो तुहानूं कुदरत दा एक नियम है वो कई गुना हंझू वापस आवेगा। तुसीं एक बीज कणक दा जमीन च सुट दिओ, आपां हुण झोना ला रहे ना, एक एक बूटा लाया जाता पनीरी पुट के, एक बीज लाया तो कई झोने के दाने मिलने जे। जे धरती तुहाडा एक दाना नहीं रखदी कई दाने वापस कर दी है तो परमात्मा तुहाडा एक हंझू रख लेगा। तुसीं किसी दी अख च एक हंझू लिआउंदे जे वो 10 गुना वापस आवेगा। तुसीं एक किसी का भला करते जे वो 10 गुना वा। जो भी चीज़ तुसीं बीजोगे ना वो कुदरत का नियम है, कुदरत तुहानूं वापस जरूर करेगा। इस करके ये तुसीं सोचना कि हुण तुसीं चंगा करना है कि जां माड़ा किसी का करना है, भला करके कुछ चंगा लेना है जां माड़ा करके अपना नुकसान कराउणा। जो बंदे का नुकसान हुंदा है ना फिर असीं सोचते हैं यार मैं तो इदां कदी सोचिया नहीं सी, मेरे नाल माड़ा क्यों होया। मैं अपनी जिंदगी च बड़ी बारी तजर्बा किया, कई सज्जनां नूं मैं इदां दिआं नूं जाणदा जिहड़े बड़े तकलीफ च रहिंदे ने। मेरा मन कई बारी ना सोचना कि मना ये इन्नी बाणी पढ़ते ने, गुरु घर सेवा भी करते हैं, जीवन भी बड़ा वधिया है, तो इन्ने दुखी क्यों ने। पर मेरी एक आदत है, सानू कथा वाले नूं आदत हुंदी जिहड़ी चीज़ दे मगर पै जाओ उस जड़ तक पहुँचते फूल लेंदे। मैं एक दो दे जिन्ना क जीवन फूलिया गया फूलिया, विचों बीज ही माड़े निकल आए। मैं भलिया बीजे ही तू कंडे सन, हुण उत्थे होर की कोई की कर सकदा। सतगुरु कहंदे कंडे ना बीज, लोकां नूं लगदा मुलायम बड़ा है बीज, पर उगने तो लगने तो इनू कंडे ने। बाद च सानू महसूस होंदा है कि मेरा जीवन दुखी क्यों। असी पहले ही इहो जिहा बीज पाया हुंदा, जो बीजोगे जिहा बीजे सो लुने। कहंदे जिद्दां दा बीजेगा तैनूं उदां दा ही वड्ढना पैना है। कर्मा संदड़ा खेत, ये परमात्मा ने कर्म भूमि इहो जी बनाई है जित कीता पाईए अपना। जिस कर्म नूं करन दे नाल अपना ही वापस रिपीट हो गए, तेरे को दुख या सुख आवे, सा घाल बुरी क्यों घालीए, वो माड़ा काम क्यों करदा है। मंदा मूल ना कीचई, किसी दा भुल के भी माड़ा ना सोची। ये बाकी धर्मां दा जां बाकी मतां जां पखंडियां बाबियां दा असूल होएगा जी। ये किसी का कीता कराया निकड़ सुकड़ बड़ा कुछ मिलता, किसी का बुरा करना है चौंक च झाड़ू सुट आओ जां कोई कर करा के चौंक च रख आओ, इनू गुरमत नहीं मनती, बाणी नहीं मनती। सतगुरु कहंदे नहीं, तू जदों भी करना है तो भले की अरदास कर। साडे ते अरदास च ये गल पंथ ने शामिल कर दी कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। जो सरबत का भला कहिंदे जे ना, उहदे तुहाडा दोस्त भी आउंदे जे, दुश्मन भी आउंदे जे, अपने भी आउंदे ने, बगाने भी आउंदे ने। सिख ते मंगदा ही सारियां दा भला है। ये सिद्धांत है साडे घर दा, इत्थे सारियां दा भला मंगिया जांदा। एक गल याद रखियो,
कदी भी गुरु घर का यह सिद्धांत है, इत्थे नफरत दे विच अरदास नहीं हो सकती। हाँ, पिछले समय च साडे कुछ वारी कुछ नुमाइंदियां संस्थावां तो नुमाइंदे लोगों ने अरदास तो भावें कईयां दा नां लैके कर दित्ती, वो चापलूसियां करके जथेदारियां साँभ के, पर जिहड़ा गुरमत दा सिद्धांत है ना, तुहाडे नाल कोई लख बुरा करदा है, तुसीं अरदास दे विच उहदा भी माड़ा नहीं जे मंग सकदे। गुरु माड़ा नहीं किसी दा करदा। गुरु इत्थों दा ये सिद्धांत है जी, चलो जे कोई माड़ा करदा है ना, अरदास करो कि दाता पिछले अवगुण बख्श लए, प्रभ आग्ञा मार्ग पावे, इनू समत बख्श ते गां अकल दे, इहो जे काम ना करे। जो हो गया सो हो गया, आगे देख चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। सतगुरु कह लगे मंदा मूल ना कीचे, अपने हथी मंदा ना करी, जवाब देना पैना तैनू। मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नदर निहालीए, ज्यों साहिब नाल ना हारीए। कहते जिस कम करन दे नाल रब दे नालों हारे ना, भाव रब दे नालों तेरी प्रीत ना टुटे, ते वेहा पासा ढालीए। पासा हुंदा जी शतरंज जो खेडदे है ना, शतरंज नूं खेडण वास्ते दो गीटियां का इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा सौखा कर देना। असीं अज लूडो खेडदे हैं ना, लूडो च गीटी नहीं हुंदी एक जिहदे उत्ते अंक लिखे हुंदे ने, 1 तो लैके 6 तक गिनती लिखी हुंदी है। इदां ही शतरंज हुंदी है। शतरंज दियां 6 दियां 2 गीटियां हुंदियां ने। अज चैस के नाम से वो चलती है, किसी ने ऑनलाइन खेडी होवे ते वो जिहड़ियां गीटियां ने ना, उन्होंने इत्थे पासा कहा है, उन्होंने पुराने समय च पासा कहा जाता सी। सतगुरु कहंदे इहो जिहा पासा सुट्टी जिहदे नाल तेरियां नरदां पुग जाण, इहो जिहा ना सुट दमी कि किते नरदां ही हार जाण। किते हार नहीं खा के ना शतरंज दे विच आज बड़ी तगड़ी गेम सी ये। सतगुरु समझा रहे ने, कहन लगे कि ज्यों साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा ढालीए, उहो जिहियां गीटियां सुट जिहदे नाल तेरियां नरदां पुग जाण, उहो जे कर्म कर जिहदे नाल तेरी परमात्मा दे नाल बन आवे। इहो जिहा काम ना करी कि रब दे नालों किते हार खा के ते तू घर नूं आ जावें पार। मनमुखी दा जिहड़ा है वो कलंक ला के ना आवीं, ज्यों साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा ढालीए। अखीर ते कहन लगे किश लाहे उपर घालीए, कुछ लाभ वास्ते भी खट्टिया कर, कुछ लाभ भी करया कर, कोई घाल कमाई लाभ वास्ते भी करया कर। मैं यही बेनती करके समाप्ति कर देनी है। याद रखियो असी घाल करते हैं परिवार वास्ते करते हैं, सवेर तो लैके शाम तक कमाई करते जे परिवार वास्ते की जाती है, अपनिया सुख सहूलतां वास्ते की जाती है। जरूरी है, चंगी गल है। मैं ये नहीं कहता तुसी परिवार का भला ना सोचो, क्योंकि जिस परिवार ने साडे नाल रहना है, असी सहूलतां देना साडा फर्ज है, उन्हां दे लोड़ींदियां चीज़ां दा साडा फर्ज है। पर एक गल याद रखियो, इहो जिहियां सहूलतां ना दिओ कि बच्चे नशियां वल चले जाण, इहो जिहियां सहूलतां ना दिओ कि परिवार का ही बेड़ा गर्क हो जाए। जिन्हों अमृत बाणी कहती है कि बहु प्रपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पह आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजे। किसी के गरीब का हक मार के खाओगे, जे किसी का बच्चा भुखा मरदा है तो तुसीं रजा दोगे, वो रज के मर जाएगा। ये कुदरत का नियम है, किसी का हक ना खा, अपना परिवार पाल। पर इत्थे गल नहीं मुकदी। हुण शरीर वास्ते तो तू परिवार नूं पाल लिया, आत्मा वास्ते की कीता है? अपने वास्ते भी कर लिए ना। वैसे मैं पिछले समय च बेनती की सी, जिहड़ा मनुख पैसे ज़्यादा कमावे ना, उहदे लई असीं एक शब्द वरत के उहनूं भांडदे हैं। असीं कहते हैं जी बंदा बड़ा स्वार्थी है, ये तो अपने घर नूं जोड़ी जाता है। याद रखियो, ये स्वार्थी नहीं हुंदा, ये लालची हुंदा है। स्वार्थ के अखरी अर्थ बनते हैं स्वायम अर्थ। स्वायम का अर्थ है अपने लिए, वो काम जिहड़ा तू अपने वास्ते करदा है। जे मैं कमाई करदा वो अपने तन वास्ते करदा है, जां अपने परिवार वास्ते करदा। स्वायम अर्थ तो वो सी जिहड़ा परमात्मा का नाम जप के अपने नाल खड़ना सी, वो स्वार्थी सी। पर सानू तो स्वार्थी भी नहीं ना बनना यार। असीं लोकां ने कह दिता बंदा बड़ा स्वार्थी है, पर स्वार्थी का अर्थ होंदा जिहड़ा अपने निजी वास्ते करदा है, पर्सनल चीज़ वास्ते करदा है, वो है परमात्मा का नाम। सतगुरु कहन लगे इत्थे कि शलाहे उपर घालीए। लाहा की है, उन्होंने असीं रोज़ पढ़ते हैं कि करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा। ये परमात्मा का लाहा है, आ खट के जाना, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे बसनु सहेला औद कटै, दिन सरै नारे मन, गुर मिल काज सवारे, किस लाहे उपर घालीए। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईए हर पुरख निरंजना, किश लाहे उपर घालीए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, किश लाहे उपर घालीए। सतगुरु कहते वो कमाई कर जिहदे नाल तैनूं लाभ होवे, वो भी खट लिया कर जिहदे नाल तेरी आत्मा का खर्च बच जाए। क्योंकि जिस वेले तू दुनियावी तौर पर इत्थे शरीर नूं छड्ड के गांह दा सफ़र तय करना है ना, जह मात पिता सुत मीत ना पाई, याद रखी उत्थे होर कुछ नहीं होना। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, किश लाहे उपर घालीए। वो कमाई भी कर ला, वो परमात्मा दे नाल प्रीत जोड़ ला, जिहड़ी प्रीत तेरे अगे तक निवे। सो ये सी पावन शब्द दी विचार
ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, उस परमात्मा दे नाल करो जिहड़ा कदी भी करके तुहानू छड्डदा नहीं। मैं एक उदाहरण दे के समाप्ति करा। अमृत बाणी का बड़ा प्यारा बचन है, कह लगे गुसाई महिंडा इठड़ा, कहंदे मेरा गुसाई जिहड़ा बड़ा चंगा लगदा है मैनू। गुसाई महिंडा इठड़ा अंब अब्बे थावों मिठड़ा, माँ ते प्यो दे नालों भी वो जिहड़ा ज़्यादा प्यारा है। इस करके सतगुरां ने पहले सलोच कहा कि भलिया जे तू सच्चा प्रेमी बनना है तो उहदे कीते दे उत्ते कदी किंतु परंतु ना करी। दूसरे श्लोक च कहा जे तू सलाम भी करदा है, हुक्म अवदूली भी करदा है, जवाब भी देंदा है, ये दोवें चीज़ां नहीं पुगणियां। अखीर ते पौड़ी ते सतगुरां ने तत्त कढ़िया, वो काम कर जिहदे नाल तेरी परमात्मा दे नाल बन आवे। वो काम इक्को ही है गुरमुखो के चालांगे उठ नाम जप निसबासर आराध कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे उपाद। असी परमात्मा का नाम जप के बाणी पढ़ के जीवन सफल कर सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होइयां भुल्लां गलतियां दी खेमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। ज्यों साहिब नाल नाहारी है ते वेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर घाली है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।